ओके, सो लास्ट क्लास हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो आपको याद रखनी है. दोज वर एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. हम उसको एक बार समराइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. लेट्स समराइज इट. आवर फर्स्ट पॉइंट वाज to find out the relation between Gibbs free energy. So first equation was delta G is equal to delta H minus T delta S, where delta G is change in Gibbs free energy, delta H is enthalpy of the reaction, T is temperature, and delta S is change in entropy. Second relation was dg is equal to v dp minus s dt. dg is the small change in Gibbs free energy, v is the volume, dp is the small change in pressure, s is entropy, dt is a small change in temperature. Then after we have discussed for a reaction, we always define delta s in place of s एंड डेल्टा वी इन प्लेस ऑफ वी. अगर कोई रिएक्शन के लिए हम डेटा को लिख रहे हैं तो एस के जगह पर डेल्टा एस लिखते हैं और वी के जगह पर डेल्टा वी. अनदर थिंग, थर्ड पॉइंट वाज डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा 0 आती है. फर्स्ट थिंग ये हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. Then after we had fourth point. Fourth point was based on the equilibrium constant to write down Kc and Kp. Kc is the equilibrium constant in the terms of concentration. Kp is the equilibrium constant in the terms of pressure. For example, if we have x plus y gives z, इसमें ये रिएक्शन है हमारी फॉरवर्ड की, यानी इसमें x और y मिलके z में कन्वर्ट होंगे, और ये रिएक्शन है हमारी बैकवर्ड की, यानी इसमें z किस में कन्वर्ट होगा, x एंड y में. अगर मैं इसके लिए Kc लिखूं, सो विल राइट डाउन एक्टिविटी ऑफ z, जिसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं ना, उसी को एक्टिविटी भी बोला जाता है. एक्टिविटी ऑफ z अपॉन एक्टिविटी ऑफ x इंटू एक्टिविटी ऑफ y. सिमिलरली, इफ यू वांट टू राइट डाउन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ z upon pressure of x into pressure of y. Let's take another example. Let's say n1x plus m1y gives n2z. If you want to write down the Kp and Kc for it, so we'll write down Kc is equal to, आप बताइए Kc क्या होगा इसका, मैं लिख रहा हूँ, आप बताएं. Z की power n2 concentration of Z raised to the power n2 upon concentration of x to the power n1. Yes, concentration of x raised to the power n1 into y to the power n1. concentration of y raised to the power m1. आ गया समझ में? Yes. And if you want to write down Kp, क्या लिखेंगे हम लोग, pressure of Z raised to the power n2 upon pressure of x raised to the power n1 into pressure of y raised to the power m1. ये क्लियर है? Yes. Then after we had discussed ideal gas equation. I think this was point number 5. In short, IGE, ideal gas equation. It was PV is equal to nRT, very important, where P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is universal gas constant, जिसकी 3 वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशन में यूज होती है. वन इज 8.314, नेक्स्ट वन इज 0.0821 एंड द थर्ड वन इज 1.98, जिसको हम 2 के फॉर्म में यूज करते हैं. एंड T इज टेम्परेचर. अगली चीज, प्रेशर के कई यूनिट्स हैं.
it has atm, bar, mmHg, then after we have, wait a minute, let's wait. Okay, so we have mmHg, then after we have centimeter Hg, we have torr. So हमें क्या होगा, इन सबको एक आपस में कन्वर्ट करके कन्वर्जन आना चाहिए. देन आफ्टर वी हैड रेड अ रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट. 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार, that is equal to 1.013 into 10 raised to the power 5 Pascal, that is equal to 760 mmHg, that is equal to 76 centimeter Hg, and that is equal to 760 torr. After this we had read our sixth term, and I think it was based on the integration. इंटीग्रेशन में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे काम की 2-3 चीज़ें हैं, बस उन्हीं को हमें याद रखना है. पहला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर, इंटीग्रेशन पावर बढ़ता है तो इट वुड बिकम n+1 अपॉन n+1. यहाँ जो लिखा रहता है उसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और यहाँ जो लिखा रहता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गिवन x square dx and limit is given 0 to 3, find the value. सॉल्व कर सकते हैं? यस सर. सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है. इसी का बस छोटा सा पार्ट है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt. आंसर इज t. इंटीग्रेशन ऑफ dz, आंसर इज z. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सेकेंड पार्ट, ये सब एक दूसरे के एप्लीकेशन नहीं थे, वो अब से अलग है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx. इट्स इंटीग्रेशन इज ln x. ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग. इसके भी एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए. इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz, बताइए कितना आएगा. यस, नेचुरल लॉग z. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1/pq dpq. यस, इट्स आंसर विल बी ln pq. देन आफ्टर हमने, आई थिंक ये कौन सा पॉइंट था, 6th. यस, लेट्स सेवन डिस्कस 7th पॉइंट, दैट इज लॉगरिदम. इस पूरे लॉगरिदम में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, दैट इज देयर आर 2 टर्म्स वी यूज. वन इज ln, वन इज log, वन इज log base 10, अनदर वन इज log base e. इन जनरल अगर कहीं log केवल लिखा हुआ है, इसका मतलब हम उसको log base 10 ही मान के चलते हैं. ठीक है. दूसरी चीज, ये जो log e है और ये जो ln है, दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों को ही हम बोलते हैं नेचुरल लॉग. 2 टाइप के लॉगरिदम हम लिखते हैं, एक log base 10 और एक log base e, जिसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं. सबसे पहली चीज, हमें दोनों को कन्वर्ट करने आना चाहिए. सो नेचुरल लॉग को हम log base e बोलते हैं, और ये होता है 2.303 log base 10 के बराबर. बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 4, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आएगा, तो हमें ये याद होना चाहिए पहली चीज. उसके बाद हम कुछ लॉगरिदम के रूल्स पढ़ेंगे. सबसे पहला रूल था ln m into n.
लॉगरिथम में मल्टीप्लाई है तो इसका वैल्यू आता है ln m प्लस ln n। सिमिलरली नेक्स्ट रूल है हमारा ln x अपॉन y इज इक्वल टू ln x माइनस ln y। नेक्स्ट रूल है हमारा ln z के पावर p, तो इसकी वैल्यू आती है p टाइम्स ln ऑफ z। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे log बेस 10 की वैल्यू 1 आती है। जब भी ये दोनों वैल्यू सेम सेम होगी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। देन आफ्टर वी हैव log बेस e, यहाँ पर भी दोनों सेम है तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ln e की वैल्यू कितनी आएगी तो आप हमेशा कहेंगे आंसर कितना आता है 1, क्योंकि ln e का मतलब log बेस e है लिखा हुआ। अगली चीज हमें पता होनी चाहिए log की ढेर सारी वैल्यू, जैसे सबसे पहले आता है log 1, यहाँ पर बेस 10 है तो log 1 बेस 10 की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट है हमारे पास log 2 बेस 10 जिसकी वैल्यू होती है 0.3, log 3 बेस 10 दैट्स वैल्यू 0.47। log 4 की वैल्यू हम याद नहीं करते हैं, हमें निकालने आनी चाहिए। log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर। ध्यान से देखिए तो पावर है तो हम जब लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं तो पावर को आगे लिख लेते हैं, सो इट वुड बिकम 2 log 2 बेस 10। आपको पता है log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 0.6। देन आफ्टर वी हैड log 5 बेस 10 दैट वैल्यू वाज 0.69। यस सॉरी नॉट 69, यस 0.69, जिसको हम चाहें तो 0.7 के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर वी हैव log, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, आई थिंक नेटवर्क इशू है शायद कुछ आज, तो आप चाहें तो मुझे टाइप कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ। सर हेलो। हाँ बोलिए। सर आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, अभी स्टार्ट करें। हाँ यस। हाँ ठीक है, सो वी हैड log, ठीक है log 4 हो गया था ना, ये मैंने वैल्यू यहाँ पर कैसे लिख दी, यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये वैल्यू यहाँ पर होगी 0.69 जिसको हम 0.7 मान के यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर वी हैड log 6 बेस 10, इसको हम यूज करते हैं ऐसे log 2 इंटू log, ऐसे log 2 इंटू 3 जिसकी वैल्यू हो जाएगी log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। log 2 की वैल्यू में पता है 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू 0.47, इसको ऐड कर देंगे देन वी विल गेट 0.77। नेक्स्ट है हमारे पास log 8 बेस 10, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो होता है log बेस 10 2 का क्यूब जिसकी वैल्यू आती है 3 log 2। log 2 की वैल्यू 0.3, इसको सॉल्व कर देंगे हो जाएगा 0.9। देन आफ्टर वी हैड 1 सेकेंड वेट करिएगा, यस लेट्स कंटिन्यू। सो log 9 की वैल्यू आप लिख सकते हैं log 9 बेस 10 इज इक्वल टू log 3 स्क्वायर बेस 10। 3 स्क्वायर को आप यूज करेंगे 2 log 3 बेस 10 के फॉर्म में। log 3 की वैल्यू आपको पता है 0.47 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.94। और लास्ट है हमारा log 10 बेस 10, क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों वैल्यू सेम हो गई तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। इतनी सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास डिस्कस किए थे और इतनी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। गुड। आज हम एक और टॉपिक इसमें ऐड करेंगे, वो भी बहुत काम का है, दैट इज ग्राफ।
आइए डिस्कस करते हैं। ग्राफ्स में जनरली हमारे जो केमिस्ट्री में ग्राफ आएंगे वो दो टाइप के होंगे। एक ग्राफ है हमारा स्ट्रेट लाइन का, और एक ग्राफ होते हैं जिनका नेचर होता है कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन के जो भी ग्राफ हैं उनका एक जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कर्व्ड लाइन का हम अलग से बात कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा ग्राफ जो हमें पढ़ना है दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। हम ग्राफ्स की ओर आगे बढ़ें उससे पहले आप सबका मतलब एक बार समझ लें। y रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। जैसे अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूं तो ये जो एक्सिस है दैट इज आवर y एक्सिस। देन आफ्टर वी हैव m रिप्रेजेंट्स स्लोप। स्लोप निकालने के कई तरीके हैं। पहला तो स्लोप को हम tan थीटा से निकाल सकते हैं, और आपने मैथ के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, यानी कि आप इसको y एक्सिस अपॉन x एक्सिस के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्लोप की वैल्यू। ये x हमारा क्या है, x एक्सिस है जो कि यहाँ पर होगा, दिस इज आवर x एक्सिस, एंड द c इज कांस्टेंट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसेप्ट। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सब कुछ क्या है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में सबसे पहली चीज हमें सीखनी है जो हमारा स्लोप है m, इसको हम बोलते हैं स्लोप। ये कैसे निकालते हैं, tan थीटा से, जो कि किसके बराबर होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस के। आप इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी यूज कर सकते हैं। डेल्टा y का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी घबराए नहीं, जब यूज करना होगा मैं फिर से बता दूंगा एक बार। अभी हमें नेचर जानना होगा। ये m की दो तरह की वैल्यू हो सकती है, वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है जो आपका थीटा है दैट इज ऑलवेज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जानते होंगे, लेस देन 90 डिग्री। हाँ, 0 से 90 के बीच वाले। सिमिलरली नेगेटिव इज पॉसिबल व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, और ये होते हैं मोर देन 90 पर। अब ये क्यों होते हैं आपको पता होगा, आपने क्वाड्रेटिक अगर पढ़ा होगा तो उसमें क्वाड्रेंट पढ़ते थे आप लोग। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट ये वाला, अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट बना दूं तो ये होता हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। आपने पढ़ा होगा ASTC, ये सब मैथ में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर सब के सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टैन और कॉट, और यहाँ पर कॉस और सेक। हमें उतना नहीं जानना है, बस हमें इतना जानना था कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो जब भी थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी तो हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा, और जब भी थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका मतलब हमारा स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल का होगा। अब हम इसको ग्राफ में कैसे यूज करेंगे ये देखिए। अगर m पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा ऊपर की हो जाएगा, इट विल मूव अपवर्ड। और अगर स्लोप नेगेटिव है देन ग्राफ विल कम डाउनवर्ड। अब हम एक एक करके सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम एक्सिस बना लेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। अब चीज़ों को कैसे चेक करना है आपको, सबसे पहली चीज चेक करनी है आपको c की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। c की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। c बताएगा कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करनी है। c हमेशा ये बताता है कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, मतलब कि ग्राफ यहाँ कहीं से, इस एक्सिस में, y एक्सिस में जो भी वैल्यू पॉजिटिव है ना उधर ही कहीं। तो आपको वैल्यू तो ये पता चल गया कि यहाँ से स्टार्ट होगा। और अगर कोई पूछे कि ये वाला जो गैप है ये वाला वो कितना है, तो आप बताएंगे c के बराबर है, और इसी गैप को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट।
अब देखिए दूसरी चीज हमें चेक करनी है एम। एम कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर एम पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कहाँ जाएगा, अपवर्ड, यानी कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऊपर की ओर, ये ऐसे, ये बन गया हमारा ग्राफ। आया समझ में? अभी और कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा, यही एंगल हमारा स्लोप में यूज होता है। ये एंगल आपको देख के कैसा लग रहा है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट एंगल? ऑब्ट्यूज। नहीं, ये एंगल हमेशा 90 से कम होगा ना बच्चे। देखो अगर मैं ये पूरा एंगल यहाँ से लेता ऐसे, ये पूरा, तब 90 होता, ये एंगल तो उससे कम है ना। सो दिस इज आवर एक्यूट एंगल। और मुझे पता अगर एक्यूट एंगल है तो स्लोप कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। देखिए ध्यान से, क्या स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल भी एक्यूट ही आ रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। सबसे पहली चीज हम किसको देखते हैं, c को, क्योंकि c बताता है कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा। c कैसा है, नेगेटिव है तो ग्राफ ओरिजिन के ऊपर होगा स्टार्टिंग या नीचे, नीचे, यानी इधर कहीं मान लेते हैं कि ये हमारा c होगा। तो बताएं ये वैल्यू किसके बराबर होगी, यही हमारा इंटरसेप्ट है। और अगर आप एक्सिस के हिसाब से देखेंगे तो ये वैल्यू माइनस सी लिखी होती है क्योंकि ये माइनस एक्सिस है। अब हम देखते हैं एम। एम बताता है कि हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा। एम कैसा है, पॉजिटिव, यानी ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आया समझ में? गुड। आइए थर्ड ग्राफ देखते हैं। और थर्ड ग्राफ इज लेट्स से y इज इक्वल टू एम एक्स। वही काम होगा, सबसे पहले c की वैल्यू ढूंढें। c की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव नेगेटिव? जीरो। जीरो मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर नीचे, ओरिजिन से। वेरी गुड। m की वैल्यू कैसी, यानी ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर। ये बन गया ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स का। आ गया समझ में? गुड। आइए और सवाल करते हैं। फोर्थ है हमारा y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। बताएं इसका ग्राफ कैसे और कहाँ से बनेगा। हाँ, ये ओरिजिन के नीचे के ओरिजिन के ऊपर, पहले ये बताइए। ओरिजिन के नीचे, ये सी नेगेटिव है तो ये हो गया हमारा माइनस सी। अब बताइए यहाँ से ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे, माइनस में तो नीचे जाएगा, नीचे, यानी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और वो ऐसा भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें परेशान नहीं होना है, हमें बस नेचर से मतलब होना चाहिए। ठीक है, अगला ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। बताएं माइनस एम एक्स प्लस सी, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से होगा, ऊपर से। ये हो गया मेरा वैल्यू सी, कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सही है। अच्छा ये स्लोप नेगेटिव है ना, यानी कि थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट। चेक करें, देखिए यही हमारा एक्स एक्सिस है, यही चेक कर लेते हैं। ये एंगल बताइए, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज या राइट, ऑब्ट्यूज होगा। समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, नेक्स्ट हमारा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। 3 ग्राफ और बच गए हैं। y इज इक्वल टू सी,
और y इज इक्वल टू माइनस सी। फटाफट करते हैं। ये हमारा माइनस एम एक्स का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा नीचे जाएगा। हाँ, ये ऐसा कुछ, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है बट स्ट्रेट लाइन होता है ना। ठीक है, अगला देखिए y इज इक्वल टू सी। कहाँ से स्टार्ट होगा? सीधे चले जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। नहीं, सी कैसा है? हाँ, ऊपर से होगा। ऊपर से ऊपर से सीधा, क्योंकि m पॉजिटिव होता तो ऊपर जाता, नेगेटिव होता तो नीचे जाता। कुछ नहीं है तो ये सीधा ऐसा जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लास्ट ग्राफ बताइए y इज इक्वल टू माइनस सी का। नीचे से सीधा। हाँ, नीचे से पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये वैल्यू कितनी होगी? माइनस सी। ये वैल्यू कितनी होगी? प्लस सी। समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। यस सर। बस लास्ट के 2 ग्राफ और है जो आपको याद रखना है। एक है y इज इक्वल टू के ई के पावर एक्स। इस ग्राफ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और इसमें हमारा ग्राफ y और x के बीच बनता है। ये सब कर्व वाला ग्राफ है अब, और ये होगा इसका नेचर ऐसा। ये ग्राफ सब आपको याद रखने होंगे। अगला ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ जो है वो पैराबोला का है। आगे चल के आप मैथ में पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, लेकिन तब तक हम अपना बता देते हैं। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पैराबोला का ग्राफ होता है, और इसका नेचर ऐसा होगा, ऐसा। लास्ट हमारा एक और ग्राफ y इज इक्वल टू के एक्स, नहीं के एक्स का नहीं, y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स, और इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नेचर है उस ग्राफ का। और ग्राफ ऐसा बनता है, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे घूमते घूमते ये जाके यहाँ पैरेलल हो जाएगा ऐसे। ये जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो 2-3 ग्राफ मैंने बोले हैं, एक्सपोनेंशियल का, पैराबोला का और हाइपरबोला का, ये आपको याद रखना होगा। रख पाएंगे याद? यस सर। चलिए ठीक है, फिर हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सब तो हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। यस। हाँ, हमने पढ़ा था हीट के हिसाब से 2 टाइप के रिएक्शन होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच निकालने का एक और तरीका होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमको याद होनी चाहिए। प्रेशर कन्वर्जन हो गया था, इंटीग्रेशन हो गया था, ठीक है। ओके, ये देखिए हमने सॉल्यूशन का डेफिनेशन वगैरह पढ़ लिया था। A solution can be defined as a homogeneous mixture of 2 or more than 2 components dispersed on molecular scale। फिर हमने पढ़ा था इन जनरल फॉर सेम फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट सबका सेम है तो जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉलिड होता है, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सबका फिजिकल स्टेट क्या होगा? सेम होगा। फिर आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिया है। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट सॉलिड होगा तब सॉलिड सॉल्यूशन बनेंगे, और जब सॉल्वेंट नेगेटिव होगा, जब सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे। अगर सॉल्वेंट गैस है तो
गैसीय सॉल्यूशन बनेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था, इनके एग्जांपल्स वगैरह सब मैंने करा दिया, आपको लिखा दिया है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट से मिलाकर हमने सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन कई टाइप हो सकते हैं। अगर 2 कंपोनेंट हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट हैं तो टर्सरी सॉल्यूशन, 4 है तो क्वाटनरी सॉल्यूशन, ऐसे करके। हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है, और उस बाइनरी सॉल्यूशन में भी सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन है। ये देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट पहचानने का तरीका ये सब हो गया है हमारा अच्छे से। ये देखिए अभी हमने पढ़ा है डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन है। फिर हमें ये भी पढ़ा दिया गया मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन। मोलैरिटी इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी 1000 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप चाहो तो यहाँ पर D3 लिख सकते हो, m इंटू एम सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर ये लिखा है लॉग इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, यहाँ पर लॉग लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा E, यानी कि दिस इज आवर नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की वैल्यू बेस 10 में 2.303 टाइम्स के बराबर होगी। और अगर हम चीज़ों को देखें तो ठीक है, एक और रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। हाँ, अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड। सॉल्यूट कौन हो सकते हैं, तो आंसर है कोई भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं। एक्वस का मतलब हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट वाटर है। अब देखिए हमें सबसे पहले चीज़ पढ़नी है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए मैं ग्राफ डायग्राम बनाता हूँ एक बार। ओके, सो देखिए मेरे पास मैं एक सेटअप बना रहा हूँ। ये कंटेनर है, मैंने इसमें यहाँ तक लिक्विड फिल कर दिया। लिक्विड 2 टाइप के हम यूज कर रहे होंगे पूरे चैप्टर में। एक लिक्विड को हम बोलते हैं वोलेटाइल और एक को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। मैं यही लिखता हूँ, एक होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड और एक लिक्विड होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड्स वो होती हैं जिनका वेपर में कन्वर्जन होता है, यानी कि अगर आप वो लिक्विड गैस में रख दिए हैं तो वो इवापोरेट होकर गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही नॉन वोलेटाइल वो लिक्विड होती हैं जिनका वेपर नहीं बनता, नॉट गेट वेपराइज्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी वेपर में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, होता है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। वही अगर मैं एग्जाम्पल लूँ मरकरी का तो इसका वेपर नहीं बनता है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल। तो अभी मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ था, इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया है। बेसिकली आप कोई भी कंपोनेंट ले सकते हो वोलेटाइल वाला। अगर मैं इसको सिर्फ एक रूम में रख दूं, मतलब मैं इसको हीट वगैरह नहीं कर रहा हूं, तो क्या मुझे पता है कि इवापोरेशन हमेशा हर टेम्परेचर पे होता रहता है? Yes, sir. ठीक है, तो क्या मुझे पता है कुछ देर के बाद यहाँ पर वेपर बनने लगेगा और धीरे धीरे वेपर इकट्ठा हो जाएंगे? Yes, sir. और ये जो गैसियस स्टेट के वेपर होंगे ना, ये वेपर गैस फॉर्म में है। गैस फॉर्म के पार्टिकल्स काफ़ी तेज घूमते हैं। वेट अ मिनट, थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। तो ये गैस के पार्टिकल्स है और हमें पता है गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसके पार्टिकल्स बहुत तेज भागते हैं। अगर तेजी से भागेंगे तो कंटेनर से टकराएंगे, कंटेनर से टकराएंगे तो फोर्स लगाएंगे, फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट होगा। और वो जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, लिक्विड की वजह से, गैस की वजह से? Yes. गैस के, इन्हीं गैस को हम वेपर बोलते हैं। और वो जो प्रेशर बन रहा है उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब हम चेक कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि वेपर प्रेशर बन रहा है या नहीं? तो उसका भी एक तरीका है, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास, एक सेकेंड, ये जो हमारे पास लिक्विड होती है ना, उसको कंटेनर में डालने के बाद हम एक सेटअप बनाते हैं। एक हमारा डिवाइस होता है मैनोमीटर, हम उसको इसी के साथ अटैच करते हैं। वो कैसा होता है देखिए, हम यहाँ पर ना छोटा सा कनेक्शन काटते हैं और एक ऐसा सा इन्वर्टेड ट्यूब का वो बना लेते हैं सेटअप ऐसा। और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ तक मरकरी फिल कर देते हैं।
मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मरकरी फील ऐसे, और फिर हम यहाँ पे वाल्व से इसको बंद किए रहते हैं, फिर हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, खोल देते हैं। जैसे हमने इसको खोला, अगर ये लिक्विड जहाँ पर है वैसे ही इकट्ठा रहा, इसका मतलब ये समझ में आया कि बाहर से कोई धक्का इसको नहीं दे रहा था। एक बात ध्यान रखिएगा, पानी इसमें नहीं आ सकता क्योंकि पानी का लेवल यही है बस, और ये मैनोमीटर हमारा थोड़ा ऊपर लगा है तो पानी तो आ नहीं सकता। तो जब ये एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया गया तो देखा गया कुछ देर के बाद ये जो मरकरी है ना, ये मरकरी यहाँ से नीचे चला गया और मरकरी का लेवल यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, ये जो रेड वाला मैं बना रहा हूँ यहाँ, और ये वाला लेवल उठ के यहाँ तक आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि कुछ तो ऐसा चीज है जो इसको यहाँ से दबाया होगा, तो ये हिस्सा नीचे चला गया, और जब ये हिस्सा नीचे जाएगा तो ये हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो फिर मेजर किया गया कि वो कितना ऊपर गया, तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच का गैप निकाला गया, वो आया था mmHg में। और अगर आपको याद है तो हमने mmHg की यूनिट यूज की थी प्रेशर कन्वर्जन में, और वहां से हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर कर लेते हैं कि इतना प्रेशर होगा। बात समझ में आ गई। पहली चीज कि हमें वेपर प्रेशर जो बना वो पता कैसे चला, तो हमने एक सेटअप बनाया, उसमें एक ऐसा मैनोमीटर लगा के अटैच किया, फिर हमने देखा कि ये मरकरी नीचे चला गया और ये वाला ऊपर। ये नीचे गया का मतलब हुआ कि कोई तो था जो धक्का दिया होगा। अब वो धक्का लिक्विड ने दिया नहीं, यानी कि गैस के पार्टिकल्स ने दिए होंगे, तो पार्टिकल्स ने प्रेशर लगाया, और यही जो वेपर के पार्टिकल्स ने प्रेशर लगाया इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि हाँ वेपर में प्रेशर होता है। एक चीज और, जब ये सब कुछ हो गया, सेटअप बन गया, ये यहाँ तक जब आ गया रेड वाले पर और यहाँ तक पहुँच गया, उसके 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद तक साइंटिस्ट ने देखने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि ये वैल्यू एक जगह आके रुक गया, मतलब उसके बाद वो नीचे नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें जितने लिक्विड के वेपर बनने थे, पूरे के बने नहीं, लेकिन जो भी वेपर बनना था एक टाइम पे बनने के बाद वो वेपर का अमाउंट सेम हो गया। अगर वेपर का अमाउंट सेम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा। अगर किसी कंटेनर का वेपर प्रेशर सेम है तो उसमें वेपर का अमाउंट बढ़ रहा है घट रहा है कि सेम हो गया है, सेम हो गया है। यानी कि उन्होंने कहा कि एक टाइम आया होगा जिसको उन्होंने कहा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने के बाद हमारा वाटर जो था लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, और वहीं पर बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो ये जो वेपर बने थे उसमें से कई सारे वेपर इस कंटेनर से टकरा रहे थे और उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जा रही थी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो लिक्विड के पार्टिकल्स पास आएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से गैस में, और ये होता है हमारा कंडेंसेशन का केस। कल हमने पढ़ा था कंडेंसेशन होने के सबसे खास तरीका यही है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम हो जाए, जिसको करने के 2 तरीके थे। एक तरीका था कूलिंग, सबसे अच्छा तरीका। दूसरा तरीका था उनकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन की वजह से घट जाए। जब ये पार्टिकल्स इससे टकरा रहे थे, जब ढेर सारे पार्टिकल्स हो गए तो ये इससे टकरा रहे होंगे बार बार कंटेनर से, टकराने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी घट रही थी, और ये काइनेटिक एनर्जी घटने की वजह से वापस से किसे कन्वर्ट हो रहे थे, लिक्विड में। यानी कि एक टाइम इक्विलिब्रियम पर आने के बाद ऐसा हो गया था कि जितना लिक्विड वेपर में बन रहा था उतना ही वेपर लिक्विड में बन जा रहा था, यानी कि वेपर का अमाउंट ना बढ़ रहा था ना घट रहा था। इसीलिए वेपर प्रेशर एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बोले ये पूरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अगली चीज आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो कब बात करते हैं हम लोग, सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये हमने कल वाले पॉइंट में पढ़ा था कि हमें याद रखना है। आइए मैं आपको ये डायग्राम क्लियर कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर दो फटाफट। देखिए क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड लाइक गैसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स आल्सो हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पास भी काइनेटिक एनर्जी होता है। हाँ ये बात और है कि गैसेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। अगले, सो द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये जो हमारा सरफेस रीजन है यहाँ पर जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, अगर वो वोलेटाइल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, थोड़ी सी भी एनर्जी पाकर फटाफट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो आपको थोड़ा सा डॉट डॉट दिख रहे होंगे
यही सब क्या बनाए गए हैं आपके गैसेस के पार्टिकल्स, यानी वेपर फॉर्म में हमारा लिक्विड हो गया है। इफ दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, दे कैन ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स, वो जिससे अट्रैक्शन फोर्स था उसको तोड़ देंगे आराम से, एंड escape into the empty space, और कहाँ भाग जाएंगे, ये जो खाली जगह था उसमें, above the liquid and get converted into vapor, और इस तरह किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, यस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। क्यों? क्योंकि ये क्या कोई फिक्स टेम्परेचर की बात तो की गई नहीं है। अगर फिक्स टेम्परेचर होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्योंकि फिक्स टेम्परेचर नहीं है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। आगे देखिए, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, यानी कि इवापोरेशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। इसको कैसे समझेंगे, आगे देखिए। अब मान लीजिए मेरे पास चाय है, तो आप जानते होंगे कप और सॉसर, सॉसर का मतलब प्लेट है, ये है, और कप ये हमारा ऐसा, मान लीजिए ये हमारा कप है, ठीक है। दोनों में हमने चाय ले लिया, एक इंसान इसमें चाय रख के पी रहा है सॉसर में, और एक इंसान इसमें चाय लेके पी रहा है। चाय का अमाउंट दोनों में सेम है। आप बताइए किसकी चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, सॉसर वाले की या कप वाले की? सॉसर वाले की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा का मतलब यहाँ पर ढेर सारे पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो ऊपर सरफेस पर होंगे, पूरा फैले होंगे आराम से, ढेर सारे। ये थोड़ी सी भी काइनेटिक एनर्जी इनको बाहर से कहीं से मिल गई, ये तुरंत अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब के सब गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इवापोरेशन काफ़ी तेजी से हो जाएगा। तो इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बोलिए समझ में आया? सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन उतना तेज होगा। ठीक है, अगली चीज़ है इवापोरेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इवापोरेशन बढ़ेगा घटेगा? आइए इसको भी समझ लेते हैं। बढ़ेगा, बट फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास सेम शेप और साइज का ग्लास है, थोड़ा सा इसमें बड़ा छोटा दिख रहा होगा, मान लीजिए सेम सेम है। इनमें लिक्विड का अमाउंट भी हमने सेम रखा है। मैं एक बार एक्सपेरिमेंट किया विंटर सीजन में और एक बार मैंने किया एक्सपेरिमेंट समर सीजन में। अब बताइए कौन से सीजन में वाटर जो इसके अंदर रखा हुआ है वो जल्दी से वेपराइज होकर खत्म हो जाएगा, विंटर में समर में? समर में, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज़्यादा था इसलिए इवापोरेशन भी ज़्यादा हुआ। यानी कि इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया एंड सरफेस स्ट्रक्चर। अगली चीज़ है इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ गया? ओके, आगे हमें पढ़ना है इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अगर कंटेनर क्लोज है, ओपन होता तो क्या होता? मान लो ये ओपन है, इसमें लिक्विड है, तो इसके वेपर बनेंगे। क्या ये वेपर यहीं रुकेंगे कि एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे? हाँ, अगर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे तो क्या ये गैस के पार्टिकल्स वापस में लिक्विड कन्वर्ट हो पा रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखिए ये पार्टिकल्स तुरंत कहाँ निकल जा रहे हैं, बाहर। ये पार्टिकल्स वापस से क्यों कन्वर्ट हो रहे थे लिक्विड में? क्योंकि ये दीवार से टकराते थे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती थी। अब वो टकराएंगे ही नहीं, वो डायरेक्ट यहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, ऊपर, और ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे। अगर मैं क्लोज कंटेनर में पानी रखूँ और एक ओपन कंटेनर में, और दोनों को मैं धूप में रख दूँ, तो किसका पानी पूरा गायब हो जाता है, ओपन कंटेनर का, क्लोज कंटेनर का? ओपन कंटेनर का, क्योंकि वो वेपर बन के कहाँ मिल गए, एटमॉस्फेयर में। इसमें जो वेपर बनेंगे वो सब यहीं इकट्ठा रहेंगे, ये सब दीवार से टकरा टकरा के अपने काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे और धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होते रहेंगे, लिक्विड में। यानी कि गैस लिक्विड में और लिक्विड गैस में दोनों कन्वर्जन होता रहता है अगर क्लोज कंटेनर है तब। चलिए आगे देखते हैं। इन अ क्लोज कंटेनर द वेपर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड कॉजिंग कंडेंसेशन। समझ में आ गया होगा?
इनिशियली जब हम कंटेनर में लिक्विड को भरेंगे, और इसको ऐसे लॉक कर दिया मैंने, स्टार्टिंग में इवापोरेशन ज़्यादा होगा, कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, कि दोनों सेम होंगे? तो आंसर है कि स्टार्टिंग में इवापोरेशन तेज होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड किस में कन्वर्ट होंगे? गैस में। जब यहाँ पर वेपर फेज के पार्टिकल्स ढेर सारे हो जाएंगे तब कोलिजन ज़्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे? वाटर में कन्वर्ट होंगे। यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में इवापोरेशन ज़्यादा होगा और इक्विलिब्रियम पर आने के बाद इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों की रेट क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। बोलिए, बात समझ में आई? ठीक है, यही लिखा है इनिशियली रेट, आर का मतलब रेट है, रेट ऑफ इवापोरेशन इज मोर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। फिर इक्विलिब्रियम पर आने के बाद रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दैट इज अमाउंट ऑफ द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट दिस कंडीशन विल बी कांस्टेंट। जितने इक्विलिब्रियम पर आने के बाद जितना वेपर बन गया था, अब वो वेपर ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। जितना वेपर बनना था इक्विलिब्रियम से पहले वो बन गया, उसके बाद मान लीजिए 5 लिक्विड गैस बना, तो उतनी ही देर में 5 गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड बन जाते हैं, तो ना अमाउंट बढ़ेगा ना घटेगा, वही इक्विलिब्रियम होता है। एंड द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर सरफेस। और जो वेपर उसके ऊपर इकट्ठा रह गए हैं वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर। पहली चीज, वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फेनोमेना, यानी कि वेपर प्रेशर आपके सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। फिर से सुनिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पीछे पढ़े थे कि सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, दैट वाज इवापोरेशन। इवापोरेशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम है तो इवापोरेशन कम होगा। लेकिन वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, याद रखना आपको। दैट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ द लिक्विड। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि लिक्विड का अमाउंट कितना ज़्यादा है, मतलब 2 लीटर है, 4 लीटर है या 100 ml है, कितना हो, वेपर प्रेशर हर लिक्विड का फिक्स होता है और वो उतना ही आएगा। दूसरी चीज़, ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है कि साइज और शेप ऑफ द वेसल क्या है, मतलब वेसल बड़ा है, छोटा है, सिलेंड्रिकल है, सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है या कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेपर प्रेशर इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर बस 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड का मतलब लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल भी है तो सबका वोलेटिलिटी सेम नहीं होगा। वोलेटिलिटी का मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। जैसे हमारे क्लास में बहुत से बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन हर बच्चे की काबिलियत एक जैसी नहीं है। उन अच्छों में से भी कुछ ज़्यादा अच्छे होंगे, कुछ कम अच्छे होंगे, कुछ एवरेज अच्छे होंगे। इन द सेम वे जितने भी वोलेटाइल लिक्विड्स हैं सब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आसानी से लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कन्वर्ट तो होंगे लेकिन उनको मेहनत उनके लिए ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि जिसकी वोलेटिलिटी कम होगी उसका वेपर कम बनेगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। इन शॉर्ट ये नेचर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करेगा। अगर लिक्विड में इंटरमॉलिकुलर फोर्स, जिसको हम इंटर पार्टिकल फोर्स भी बोलते हैं, यानी कि उनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है, ये मान लीजिए लिक्विड है, इनके बीच का फोर्स है, अगर मैं कहूँ कि ये फोर्स बहुत ज़्यादा है तो बताइए इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा कम बनेगा? ज़्यादा है तो फोर्स कम है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि इसका फोर्स ज़्यादा है, इनके बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कम होगा? तो आंसर होगा कि वेपर प्रेशर कम होगा। अगर फोर्स ज़्यादा है तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, और जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब वहीं अगर हम बात करें कुछ ऐसे पार्टिकल्स की जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, फोर्स कम है तो वो थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। और जल्दी कन्वर्ट होंगे तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है?
Yes, sir. तो यही लिखा है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम आएगा, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। क्लियर है? Yes, sir. और अगर बताइए मेरा लिक्विड नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा या कम आएगा? Liquid pressure non volatile है तो हाँ, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब उसका वेपर ही नहीं बनता। वेपर प्रेशर हाँ, तो उसका वेपर प्रेशर सीधे जीरो आ जाएगा, मतलब उसमें वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि वेपर ही नहीं बना तो प्रेशर कहाँ से आएगा। क्लियर है? अगला है हमारा क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। मैं ये कराऊं कि छोड़ दूं? छोड़ देते हैं, आपके साथ 30 पे वापस से क्लास है ना? Yes, sir. ठीक है, मैं इसको कल कराऊंगा। आज के लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है, आप इसको लिख के अच्छे से पढ़ के आइएगा। कल का और आज का जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनको ज़रूर एक बार 2 बार रिवाइज करिए। जो क्वेश्चन रह गए हैं डीपी को उसे कंप्लीट कर लीजिए, कल डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या आप अपने नोट्स का चैप्टर 1 का पीडीएफ भेज सकते हैं? क्या बच्चे? आप अपने नोट्स का जो चैप्टर 1 है वो भेज देते हैं? हाँ ठीक है, आज वाली क्लास का नहीं, चैप्टर 1 का पूरा। चैप्टर 1 कौन सा? सॉलिड स्टेट। यस सर, जो अभी पढ़ा रहे हैं।